Respected organizer and dear participant from the various states of India, basically, I am the man of management. I am not a man of the science. Since my primary education, I was a student of art, social science, and management. But today, I gain the courage to speak on this topic due to organizer liberty, because in this topic, organizer given scope for me also. Behind this courage is my new habit, which is now I use to study what I want, what I should study. Friends, now I study my own decided syllabus, non-decided syllabus by other. Here, today is a second day, but I feel that I should minor change in the topic. In the at the place of human welfare, I prefer to use social welfare, because all the activities human directly impact on the society, which may be from science and technology or other discipline or subject. Friends, before I explain the themes, but just I would like to explain about the human needs for his life development. In daily routine, what is our needs? Basically, we know that I have clarified in 5 points in these needs. Human beings have a natural instinct to gain more comfort on their life by using science and technology, and its main reason in different types of disease. After the disease, human want easiest way for recovery from disease. And third point, every human want to travel maximum distance in a minimum period. Fourth, even every human want to communicate with each other without making barrier by long distance. And last but not the least, every human want good food, good clothes, good shelter, and many other things which make their life luxurious. Let me explain one by one all these 5 points. Friends, comforts in their life. For making comfort our life, basically, we used to use 3 important things: AC, fridge, and RO water, without knowing the harm of it. We know I know you all are mostly from science background, but we have to realize that AC release the harmful gas, which is harmful for ozone layer. Fridge also release harmful gas, CFCs, which is also harmful for ओजोन लेयर. और आरओ वाटर के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि वो भी बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, उन सारे मिनरल्स को निकाल कर हमको पीने लायक पानी दे रहा है, जिसको कि हम बड़े शान के साथ, शौक के साथ पी रहे हैं. Second point was, after the disease, human want easiest way to recovery from disease. अब इन प्रकृति के साथ मैं छेड़छाड़ करूंगा तो डिजीज आएंगी ही, और डिजीज आएंगी तो उसके लिए भी हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया. और उस शॉर्टकट रास्ते के लिए जल्दी से जल्दी हमारी डिजीज, बीमारी ठीक होना चाहिए. बीमारी का कारण के प्रति हमने कभी नहीं सोचा. मैं बीएचयू में होने के नाते मैं देख रहा हूं, जानता हूं, बहुत सारे पेशेंट्स छोटे छोटे डॉक्टरों से इधर उधर अपने रोग के बारे में दिखाने के लिए जाते हैं, और जब बुरी तरीके से वो थक जाते हैं, फिर वो आते हैं बीएचयू. और बीएचयू आने के बाद फिर मॉडर्न मेडिसिन से उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेदा है, वहां पे उनको रिफर किया जाता है. और बड़े बड़े डॉक्टर आयुर्वेदा के जो
चिकित्सक हैं उनसे जो है कंसल्ट लेते हैं कि ये बीमारी है, इसको जो है अब इसमें और क्या किया जा सकता है, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई है। तो हम जो है इसमें बहुत देर से सोचते हैं। उसके बाद जो कारण है कि आफ्टर द डिजीज वी थिंक अबाउट आवर लाइफ स्टाइल। जो डेली लाइफ स्टाइल हमारी है, वो बीमारी आने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए। ये जो है डिजीज का कारण है और उस डिजीज को निवारण के लिए इसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। जल्दी से बीमारी को ठीक करने के लिए हम मॉडर्न मेडिसिन के पास जाते हैं। आज हम जानते हैं कि बहुत सारे मेरे मित्र डॉक्टर हैं, वो बताते भी हैं कि जितने लोग बीमार नई बीमारियों से नहीं, बल्कि पुरानी बीमारियों के कारण दवाओं के खाने से उनके पास जो नई बीमारियां आई है, उससे बीमारों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। थर्ड पॉइंट इज एवरी ह्यूमन वांट टू ट्रेवल maximum distance in a minimum period. For achieving this target, we take various types of personal vehicle. We use various mode of transport. We use various taste of transport. आज जो है एक एक घर में आवश्यकता एक गाड़ी की है, 2 मेंबर हैं तो 2 कार रखा है। चल सकता था काम, कभी विचार नहीं किया हमने। Every human want to communicate with each other without making barrier of long distance. Fourth point. हम जो है कम्युनिकेशन का बैरियर, बीइंग अ मैन ऑफ मैनेजमेंट, आई फील we should always mind the barrier of communication. We should always think about communication. Before the communicating anything, we have to think. It's a golden rule of the communication. Don't give more information without need. लेकिन हम जो है उस इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाते हैं, जरूर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी ह्यूमन वांट गुड फूड, क्लोथ्स, शेल्टर एंड अदर थिंग्स व्हिच मेक लाइफ लग्जरियस। फ्रेंड्स, गुड फूड का जो ट्रेंड है, उसकी डेफिनेशन ही आज बदल गई है। हमारे घरों में बच्चों से पूछिए कि अच्छा खाना क्या है, तो बता देंगे कि बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है। शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि खाने की तरफ कम उत्सुकता, और जो इस तरह की स्टॉल है, फास्ट फूड की जो स्टॉल है, उन पे जो है लोग की ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, लाइन लगा के खाना खाते हैं वहां पे। तो गुड फूड की डेफिनेशन बदल गई है। जो न्यू जनरेशन है, दे आर नॉट लाइकिंग द ट्रेडिशनल फूड, बट अभी जो हमारे चिकित्सक हैं, वो सभी उस ट्रेडिशनल फूड की तरफ हमको जो है पहुंचाने की बात करते हैं, उधर जाने की बात करते हैं। मैं एक हमारे मित्र हैं, बीटेक एमटेक करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे चंडीगढ़ में हुई। उन्होंने पूछा मैंने कि क्या अभी कर रहे हैं, तो वो बताए कि मैं तो मिलेट फूड का शेफ हूं। तो हमने कहा कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हैं। तो कहे कि तो क्या हुआ, नाउ आई हैव चेंज माई डिसिप्लिन। और जितने भी मिलेट फूड हैं, मोटे अनाज जिसको हमारे गांव में बोला जाता था, उनको कैसे पकाया जाएगा, कैसे खाना जाएगा, उसके खाने से किस बीमारियों का इलाज होगा, कैसे हम बच सकते हैं, किस सीजन में कौन से ग्रेन को, कौन से फूड को खाना है, उस पे वो काम कर रहे हैं। और आज उनका नाम बहुत ही पूरे देश में जो फूड शेफ है उनमें जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत सारे होटल में वो शेफ को ट्रेनिंग देने जाते हैं मिलेट फूड का। क्लोथेस के बारे में हम देख ही रहे हैं कि जब तक टाई नहीं लगाया तब तक जेंटलमैन नहीं बना। ये कपड़े जो है जलवायु के हिसाब से होते हैं, न कि देश के हिसाब से। हमारे यहाँ
जितने भी शिक्षक टीचिंग कम्युनिटी है, वो तो बिना सूट पहने, बिना टाई लगाए, चाहे वो गर्मी का दिन हो, लेकिन प्रेफर वो यही करते हैं कि सूट पहन के जाएंगे तो जेंटलमैन लगेंगे। और इसका असर यह दिखने लगा। पहले जो है विवेकानंद से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था अमेरिका में कि आप जो है इस तरह के कपड़े पहनोगे तो कैसे जेंटलमैन बनोगे? तो विवेकानंद ने जवाब दिया था कि आपके देश में टेलर जेंटलमैन बनाता होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, टेलर जेंटलमैन नहीं बनाता। हमारे यहाँ हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमको जेंटलमैन बनाता है। तो बंधुओं, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको अपने इस भाषण में थोड़ा-सा एक शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बैठे हैं। हमारी क्या भूमिका है? हमारा क्या महत्व है? हम किस प्रकार हैं? हमको कैसा होना चाहिए? कहानी कुछ इस प्रकार है कि तुंगनाथ नाम के एक राजा थे, उन पे जो है एक पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा तुंगनाथ बहुत चैतन्य नहीं थे। अचानक आक्रमण होने से उनकी सेना जो है डटकर युद्ध नहीं कर पाई और उन्हें युद्ध में भागना पड़ा। जब राजा तुंगनाथ भाग के जंगल की तरफ गए, चलते-चलते डर के कारण उनको यह आभास ही नहीं रहा कि जंगल में कितने अंदर चले गए। काफ़ी अंदर जाने के बाद उनको भूख और प्यास दोनों लगी, घोड़ा भी थका हुआ था। दूर से देखा कि एक जंगल में आग की रोशनी दिखाई पड़ रही है। फिर उन्होंने जब उसके नज़दीक पहुँचा तो देखा कुछ नंगे, कम वस्त्र पहने हुए, नंगे नहीं कहेंगे, कम वस्त्र, केवल लंगोटी धारण किए हुए साधु सन्यासी वहाँ बैठ के आग ताप रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद कहे कि इनसे क्या माँगूँ, इनके पास क्या होगा खाने के लिए? फिर भी भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई महात्मन लोग, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि चले जाओ उस बड़े पेड़ के पास और वहाँ बैठ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वो पेड़ के पास गए, उनकी इच्छा हुई कि एक अच्छा-सा, इतना सुंदर पेड़ है, इतना सुंदर वृक्ष है, इसके नीचे एक सुंदर-सी कुर्सी मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। जैसे इच्छा ज़ाहिर किया वैसे एक कुर्सी मिल गई। कुर्सी पे बैठे, कहे कि अगर खाने के लिए सुंदर-सा कुछ मिल जाता, तो कितना अच्छा रहता। जैसे ही मन में विचार आया, खाने के लिए अच्छे-अच्छे पकवान मिल गए। थोड़ी देर बाद सोच रहे हैं कि मैं तो खा पी लिया, मेरा घोड़ा भी नहीं खाया है। घोड़े के लिए भी कुछ घास और जल मिल की व्यवस्था हो जाती तो वो भी बेचारा खा लेता। घोड़े ने भी खाया, देखे थोड़ी देर बाद घोड़े के पास भी घास और पानी की व्यवस्था हो गई। बड़ा प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद सोच रहे हैं कि मेरा राज्य छिन गया, सब कुछ तो मिला मुझे, लेकिन मेरा राज्य मिल जाता। मैं अचानक लड़ नहीं पाया, शक्ति तो थी लड़ने की, लड़ नहीं पाया, मेरा राज्य मिल जाता तो भी अच्छा रहता। तभी उनको दूर से एक घोड़े पे सवार उनका सेनापति आते हुए दिखाई पड़ा। सेनापति आके पूछता है, से पूछते हैं कि क्यों भाई तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सेनापति ने कहा महाराज, जब आप वहाँ से निकले हैं, पूरी प्रजा बहुत दुखी हो गई और पूरी प्रजा ने, सब मिलके प्रजा ने आपकी तरफ से युद्ध लड़ा और उस पड़ोसी राज्य को उसके राज्य में खदेड़ दिया है। और सभी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आइए और आप अपने राजगद्दी पे बैठिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चलने लगा। थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद फिर सन्यासियों के पास आया। कहा, सन्यासी महोदय, आपने मुझे जिस पेड़ के पास भेजा, वहां मैंने जो चाहा वो सब मुझे मिल गया और आप लोग इतनी दीनहीन स्थिति में क्यों बैठे हैं? आप लोग भी अपने लिए उससे क्यों नहीं मांग लेते उस पेड़ से? आप लोगों को भी सब कुछ मिल जाता। जैसे ये बात बोले, सन्यासी ने उत्तर दिया, जानते हो वो वृक्ष क्यों दे रहा है? क्योंकि हम बैठ के यहाँ पे तप कर रहे हैं।
हम तप कर रहे हैं, उसका फल वो दे रहा है। जिस दिन हम उसका उपभोग करने लगेंगे, उस दिन यह वृक्ष कुछ देने के योग्य नहीं रह जाएगा। हम शिक्षक भी उसी वृक्ष, उसी सन्यासियों के भांति हैं, जिनके तप से यह देश ही नहीं, यह पूरी पृथ्वी का कल्याण निर्भर करता है। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी उपयोगिता क्या है। श्लोक मुझे याद आता है, महेश्वर गुरु साक्षात परम नमः। जिस गुरु के लिए यह श्लोक कहा गया, हम अपने आप को कहां पाते हैं? क्या इस श्लोक में वर्णित गुरु के निकट अपने आप को पाते हैं? और अगर नहीं पाते तो क्यों नहीं पाते? बंधुओं, आज जो गुरु का गुरुत्व है, वह गुरुत्व कहां चला गया? उस गुरुत्व को दूर करने का दोषी कौन है? गुरुत्व का मतलब आकर्षण, आप लोग साइंस के अध्यापक हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी गुरु के अंदर, वह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहां गई? इसका दोषी कौन है? हमारा वह स्थान कहां गया जो विवेकानंद की दृष्टि में रामकृष्ण परमहंस जी का था, जो स्थान शिवाजी की दृष्टि में समर्थ गुरु रामदास जी का था, जो कृष्ण की दृष्टि में गुरु संदीपनी का था। अभी मैं चल रहा था रामायण, तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की दृष्टि में गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ का जो स्थान था, वह स्थान कहां गया गुरु के प्रति? जो चाणक्य का स्थान था, वो कहां था, क्यों था? हम शिक्षक हैं, हमको उसी स्थान पे अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है। बंधुओं, ये हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे देश के साथ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमको धोखे में डाला गया है और इन स्थानों से, इन प्रश्नों से हमें दूर किया गया है। हमें पुनः इस पे विचार करने की जरूरत है कि हम फिर अपने अतीत में जाएं और उस गौरवशाली परंपरा को याद करें और याद करके अपने आप को परिवर्तन करें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह केवल सिलेबस की समाप्ति नहीं, समाज के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करे। समाज की समस्या क्या है, उसको भी समझना हमारे लिए बहुत उचित है। जब तक समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं कर सकते। बंधुओं, उसके लिए जब समस्या को समझ लेंगे तो उसका समाधान मिलेगा, और समाधान जब करने लगेंगे तो गुरु का गुरुत्व भी वापस मिलेगा। कुछ प्रश्न मैं हम छोड़ता हूं आप लोगों के बीच में। मैं शिक्षक होने के नाते हमने क्या किया मीन्स हमारे द्वारा क्या निर्माण किया गया? हम प्रति वर्ष एक एक कक्षा में 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उनमें से कितना निर्माण किया? जिसका निर्माण किया वो क्या बना? जिनको शिक्षा दिया वो क्या बना? अगर उसको हमने नौकर बनाने की शिक्षा दी, वो नौकर बना, तो ऐसा क्यों किया? क्या हमको यही करना था? किस प्रकार का नौकर बनाना था? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कब करेंगे और क्या करेंगे? ये कुछ गूढ़ प्रश्न हैं जिनको हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। बंधुओं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि उनके पास एक तपस्वी आए जो उनके बहुत ही निकट के मित्र रहे। कहे, रामकृष्ण परमहंस, तुम जानते हो मैं हिमालय जाकर 12 वर्ष कठिन तपस्या करके
पानी पर पैदल चलने की क्रिया सीख कर आया हूं। अब मैं इस नदी को निःशुल्क पार कर लूंगा। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भाई मैं तो एक आना देकर नदी पार कर लेता हूं, तुम 12 वर्ष में केवल एक आने का काम किए हो। उद्देश्य तो तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति की थी, उसका क्या हुआ? जब हमारे साथ थे तब तो कहते थे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। कहां गया वो उद्देश्य तुम्हारा? मेरा भी आग्रह है आप सभी से कि अपने शिक्षक जीवन के अतीत में देखें और अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है या नहीं, इस पे विचार करें। बंधुओं, जो शिक्षा का केंद्र होता है वह हम सभी शिक्षकों की साधना स्थली है। साधना स्थली हमारा मंदिर, हमारा गुरुद्वारा, हमारा गिरजाघर, हमारा मस्जिद वही है हमारी साधना स्थली। और हमारा आचरण और व्यवहार हमारी पहचान है। शिक्षक कभी भी और संस्थान, ये दोनों कभी भी नाम के लिए नहीं होते हैं, ये काम के लिए होते हैं। काम से इनको जाना जाता है। बंधुओं, याद रखें, हमें पारस पत्थर की तरह नहीं बनना है, हमें दीपक की तरह गुण विकसित करना चाहिए। जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक को जलाते हुए, तीसरे दीपक को जलाते हुए हजारों लाखों करोड़ों दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, अपने समान उजाला देने वाला, प्रकाश देने वाला बना सकता है, उसी प्रकार हमें अपने गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। बंधुओं, शिक्षक को कभी उपदेशक नहीं, उदाहरण बन के प्रस्तुत होने की जरूरत पड़ती है। मैं तो ये मानता हूं कि जो अंतः चक्षु को खोलकर ज्ञान दिलाता है वही गुरु है, वही शिक्षक है। केवल सिलेबस पढ़ा देने वाला गुरु नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह भाव पैदा कर देना अपने विद्यार्थी में शिक्षक का गुण है। उग्र बोलना हमारी पद्धति नहीं है, प्रखर बोलना हमारी पद्धति है। हम शिक्षकों को प्रखर होना चाहिए बोलने में, उग्रता तो होनी ही नहीं चाहिए। आग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैं कुछ समय पूर्व, आज से 10 साल पहले, 12, 13 साल, 14 साल पहले मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ाता था। वहां पे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर से मिलने के लिए गया। बैठे थे तो परिचय हुआ, बीएचयू से आए हैं। तो बताया मैंने कि सर मैं यहाँ पढ़ाया हूँ। चलिए आप बीएचयू क्यों चले गए? बीएचयू को मैं पसंद नहीं करता। उसके बाद तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो डॉक्टर साहब, एक अपने सहयोगी मित्र से, मैं डॉक्टर साहब, मैं गया था एक सिलेक्शन कमेटी में और वहां मुझे इस शिक्षक का रिसर्च स्कॉलर मिला था, उसको मैं बहुत बुरी तरह से निपटा कर आया हूं, बोटी बोटी काट कर आया हूं। क्या शिक्षक का ये भाव समाज के लिए उचित है कि किसी शिक्षक के प्रति अगर उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है, व्यक्तिगत गुस्सा है, उसको उसके विद्यार्थी से वो निकालें? बहुत सीनियर, बहुत समाज में उनकी इज्जत है। मैंने उस दिन जो है सोचा कि किस प्रकार की शिक्षा हमारी व्यवस्था है। आज तक वो बात मुझसे भूलती नहीं है मेरे मन से। शिक्षक को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वह शिक्षक है, वो अपने व्यवहार से, अपनी व्यवहार कुशलता से उसे पता चल जाता है कि वो शिक्षक है। समाज में देखते ही लोग पहचान लेते हैं कि वह शिक्षक है।
शिक्षक बीज की तरह होता है जो एक से अनेक पैदा करने की क्षमता रखता है। बंधुओं, हम सबों को यह ध्यान रखना पड़ेगा अपनी शिक्षा देते समय, जिस प्रकार औषधि देते समय, दवा देते समय डॉक्टर यह बताता है कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, उसी प्रकार हमें ज्ञान देते समय शिक्षक को यह अपने विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा, उनको पथ्य और अपथ्य का भी वर्णन करना चाहिए। चंपा फूल को आप लोग जानते होंगे, बड़ा रूप रंग में अच्छा होता है, परंतु उस पर मधुमक्खी नहीं आती है। देखने में तो बहुत अच्छा है चंपा का फूल, मधुमक्खी नहीं आती, शहद नहीं आता, उससे शहद के काम नहीं आता, तो उसकी सुंदरता किस काम की है? हमें चंपा फूल नहीं बनना। हमारी महिमा प्राचीन काल से ही बहुत ऊंची रही है। बोला गया है, देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कंचन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। देवता यानी भाग्य अगर रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता है। इसलिए गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारी है, हमारे बारे में ये वर्णन मिलता है प्राचीन साहित्यों में। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः धराधरो वर्षति नात्म हेतो परोपकाराय सताम विभूतयः। जिस प्रकार नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ स्वयं के लिए वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार शिक्षकों के लिए, सज्जनों के लिए विभूतियां जो होती हैं वो भी दूसरों की भलाई के लिए होती है, स्वयं के पुनरुत्थान के लिए नहीं, स्वयं के केवल विकास के लिए नहीं होती है। बंधुओं, हम शिक्षक होने के साथ साथ, मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक शिक्षक छात्र भी है और अभिभावक भी है। हम तीन रूप में हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक अभिभावक के रूप में। इस कार्यक्रम में जो पूरे देश से सम्मिलित है वे सभी शिक्षक हैं। कार्यक्रम में शिक्षक के विकास का है, फैकल्टी डेवलपमेंट नाम है इस कार्यक्रम का, तो निश्चित रूप से हमें सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार के विकास की जरूरत है हमें। इस विकास की अवधारणाओं को समझने के लिए खुद से प्रश्न करने की जरूरत है कि हम सभी कौन हैं और क्यों हैं। उत्तर इसका मिलता है कि हम शिक्षक हैं। शिक्षक जीवन भर एक छात्र रहता है, साथ ही हम एक अभिभावक भी हैं। वास्तविक रूप में तो हम शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों की भूमिका में हैं, लेकिन भूमिका का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं, इस पे प्रश्न है। मैं इस जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी को एक साथ नहीं देख पाता, अधिक से अधिक केवल 3-4 लोग एक बार में देखते हैं, तो मैं चेहरे का भाव नहीं समझ सकता। क्लास या अगर सामने होते तो हम समझ पाते कि आपके चेहरे का भाव किस प्रकार का है, उससे अनुमान लगा पाते। लेकिन हम सबके मत या विचार को जान लें, इसलिए हम पुनः अतीत के पन्नों को, अपने दायित्वों को समझने के लिए जाने की जरूरत है, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, जिसे आप और हम जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है, अभिभावक की जरूरत ही नहीं होती है। अभिभावक एक बार आपके विश्वविद्यालय, आपके कॉलेज, आपके विद्यालय में अपने पुत्र को, अपने पुत्र को आपको सौंप दिया, वह गुरु के चरणों में सौंप कर आता है, फिर गुरु उसे गढ़ना शुरू कर देता है और अपने पास आए शिष्यों को अकिंचन से महान बना देता है। केवल बौद्धिक विकास में योगदान करना ही नहीं,
अपितु उसके भावनात्मक विकास में भी शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जब तक भावनात्मक विकास नहीं करेंगे, उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। संपूर्ण विकास, समग्र विकास करने की जरूरत शिक्षक की होती है। शिक्षक ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देता है। मैं इसका एक उदाहरण, हमारे मित्र प्रमोद जी गणित के विद्यार्थी रहे हैं और बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी रहे हैं गणित के। आज तक इनका रिकॉर्ड हमारे कॉलेज में किसी ने तोड़ा नहीं, जो इन्होंने बना के ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में बनाया था बंधु। लेकिन इनके लेवल वाली गणित नहीं, बहुत प्राइमरी लेवल की गणित है। एक बार एक शिक्षक ने अपने क्लास में बच्चों से प्रश्न किया कि अच्छा बच्चों बताओ कि 3 और 2 कितना होता है। सभी ने कहा कि 5 होता है। तो फिर पूछा उन्होंने कि अच्छा 5 क्यों होता है, क्यों नहीं 6 होता है, क्यों नहीं 4 होता है। बच्चे बड़ा आश्चर्य थे, कहे कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, 3 और 2 तो 5 ही होगा, 6 कैसे होगा, 4 कैसे होगा। परंतु शिक्षक का जो जवाब था, उस भाव को हमको समझने की जरूरत है और उस भाव के साथ ही हमको भी शिक्षा देने की जरूरत है। शिक्षक ने कहा कि मेरे गुरुजी ने जब इस जोड़ को बताना कि 3 और 2 5, कि जब हम किसी से लें तो 3 और 2 5 की जगह पे 6 न ले लें, और जब दें तो 3 और 2 5 की जगह पे 4 न दें। इसी का ध्यान रखने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि 3 और 2 5 ही होता है। विद्यार्थी के अंदर जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो तभी वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। छात्र और गुरु का एक बड़ा ही अकिंचन, बहुत ही अमिट संबंध होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह बहुत सारे शास्त्रों में हमारे मिलता है। जिसके पास श्रद्धा होती है वही ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन सर्व अज्ञानम दुखम, अर्थात जिसके पास अज्ञानता है वह सभी प्रकार के दुखों के कारण है, दुखों का कारण है। सभी प्रकार के दुखों का कारण भी अज्ञान ही है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी की श्रद्धा बढ़े, उसका ज्ञान बढ़े। एक कुरेल काव्य में एक प्रसंग लिखा हुआ आता है कि मनुष्य तो केवल दो जीती जागती आंखें हैं, एक है अंक और दूसरा है अक्षर। अन्यथा आंख के नाम पर तो केवल 2 छेद हैं। इस प्रकार अंक और अक्षर को प्रदान करने वाला अगर कोई है तो वह है शिक्षक है। उसका अनुमान ज्ञान कराने वाला अगर कोई है तो वह शिक्षक है। और छात्रों को पूरे जीवन भर शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान तभी मिलता है जब विनय हो, अतः छात्रों में विनय का भाव भी बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक का मतलब है कि सुख चाहने वाले यानी मेहनत से जी चुराने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्यार्थी को सुख यानी आराम नहीं मिल सकता। सुख की चाहत रखने वाले को विद्या का और विद्या पाने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। बंधुओं, यशपाल जैन जी का एक प्रसंग उन्होंने लिखा था कि 5 साल का एक बच्चा पहली बार विद्यालय उसके माँ बाप ने भेजा। जब विद्यालय गया बच्चा
तो स्कूल में पढ़ाया गया कि सदा सत्य बोलो। घर पर आया, तभी थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। उसने अंदर से देखा तो मकान मालिक खड़े थे। पिताजी से जाके बताया, मकान मालिक आए हैं पिताजी मिलने के लिए, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोल के बैठा लूं? तो पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, कह दो पिताजी घर में नहीं है। और बालक गया और जाके बताया कि चाचा जी वो घर में है नहीं, अंकल वो घर में नहीं है। दूसरे दिन फिर स्कूल गया। स्कूल में गया तो स्कूल में पढ़ाया गया कि झगड़ा मत किया करो, आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो वापस आया, घर पहुंचता है तो देखता है कि माता और पिताजी आपस में खूब लड़ रहे हैं। तीसरे दिन फिर स्कूल गया। स्कूल में पढ़ाया गया, दूसरों पर दया का भाव रखो। घर आता है और देखता है कि उसका भाई एक गरीब की खूब पिटाई कर रहा है। चौथे दिन जब माता पिता उसके स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जैसे ही माता पिता पूछते हैं कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो कहता है कि स्कूल में सब उल्टा पढ़ाया जाता है। स्कूल में उल्टा पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जिम्मेदार कौन है? शिक्षा में शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों की भूमिका में हम हैं। अभिभावक को चाहिए कि वो अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे और साथ ही साथ संस्कार को भी उनके अंदर पिरोए। जो गुरु के यहां से सीख कर आए उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करे। ऐसा अगर नहीं कर पाता, गुरु के यहां से कुछ और पढ़कर आए और घर में कुछ और मिले, तो क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार की समस्या खड़ी होगी, ये प्रसंग जो है आपको अवगत कराता है। बंधुओं, अब मैं शिक्षक की भूमिका क्या है, बड़ा ही एक संत ने कहा कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं गावई वेद पुराण। बिना ईश्वर के कृपा के गुरु नहीं मिलता है, गुरु यानी शिक्षक, और बिना शिक्षक के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावई वेद पुराण। बिना ज्ञान के आत्मा नहीं है, ऐसा वेदों और पुराणों में वर्णन है। आज की वर्तमान स्थिति को देखकर हम सभी को हमारी जो भूमिका है उसमें व्यवस्था परिवर्तन की भूमिका है, व्यवस्था को सुधारने की भूमिका है, व्यवस्था को ठीक करने की भूमिका। और ये तीन व्यवस्था है। पहली व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था रक्षण व्यवस्था, और तीसरी पोषण व्यवस्था। और तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये तीनों व्यवस्थाएं, एक व्यवस्था अगर गड़बड़ा गई तो एक भी ठीक नहीं हो सकती, यानी कि किसी न किसी व्यवस्था में गड़बड़ी है। सबसे मुख्य जिम्मेदारी जो ठीक करने की है, अगर शिक्षण व्यवस्था ठीक हो गई तो ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएंगी। अभी की जो वर्तमान की हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वह भारतीय नहीं है, अभारतीय है। बंधुओं, अगर वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था होती तो समाज में शक्ति का विकास होता। दुर्जन की शक्ति क्यों रही है? क्योंकि हमने जन शक्ति को विकास करने वाली भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने, हम क्यों नहीं विचार करते कि समाज में शिक्षक की है या सुखी है क्या शिक्षक? अगर सुखी नहीं है, दुखी रहेगा तो कैसे काम करेगा?
उसी प्रकार अगर विद्यार्थी भूखों मरे तो उसी कौन है? विचार करने पे जवाब जो मिलता है वो यही व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मैं कर रही हूँ व्यवस्थाओं का, तो यह व्यवस्था ही उसकी जिम्मेदार है। आज शिक्षक को नौकर बना दिया गया है और जो नौकर है वो नौकर ही पैदा करेगा, नौकर ही बनेगा। हमारे विद्यार्थी भूखों मरे तो कैसे काम चलेगा? हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? हमारा विद्यार्थी भूखों मर रहा है, बेरोजगार होकर घूम रहा है, तो अपने जीवोपार्जन नहीं कर सकता, समाज दुराचार कर रहा है, अत्याचार करता जा रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। समाज में इसकी शिक्षा हो, इसके लिए रक्षण व्यवस्था को हम दृढ़ करने की जरूरत है। जब हमारी शिक्षण व्यवस्था ठीक होगी, उस शिक्षण व्यवस्था में से निकलने वाले विद्यार्थी रक्षण व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके होगी। अब वो समाज की सुरक्षा करेंगे तो समाज को बुरी नजर से कोई देख नहीं सकता। शासक का निर्माण होगा और तभी सबकी रक्षा संभव है। आप देखिए, नारी बच्चों की सुरक्षा, विद्यार्थी की सुरक्षा, किसान की सुरक्षा, व्यवसायी की सुरक्षा, अमीर की सुरक्षा, गरीब की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रश्न क्यों खड़ा है? क्योंकि पहले जो व्यवस्था उसको ठीक नहीं किया। रक्षण व्यवस्था की समस्या समाधान हेतु श्रेष्ठ शासक की व्यवस्था होगी, वो उपलब्ध कराना हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। श्रेष्ठ शासक को उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें की तरह समझना होगा कि श्रेष्ठ शासक के कुछ जन्मजात भी होते हैं और उसके विकास में हमें सहयोगी बनना होगा। तीसरी व्यवस्था जो है वो पोषण व्यवस्था है। व्यवस्था सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये पोषण व्यवस्था का दायित्व है। बंधुओं, जो जन्मा है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा, लेकिन जो नहीं कमाएगा वो कैसे खाएगा? इस पर विचार करना पोषण व्यवस्था की जिम्मेदारी है। कोई भी जीव अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रह सके, ये जिम्मेदारी पोषण व्यवस्था की है। जो कमा नहीं सकता वो कैसे जिएगा? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसके लिए पोषण व्यवस्था को संभालने वालों की जिम्मेदारी हमारे है, हम शिक्षकों की है। हम अगर अपनी शिक्षण व्यवस्था को ठीक कर लेंगे तो उनकी पोषण व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। न कमाने वाले व्यवस्था कमाने वाले को करनी चाहिए। आज सरकारी स्कूलों के प्रति क्या निष्ठा है, सरकारी अस्पताल के प्रति क्या निष्ठा है? इन दोनों के निष्ठा को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज में जहर मुक्त अनाज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज में जहर मुक्त सब्जी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज में जहर मुक्त फल फूल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। ये सभी हमारी जिम्मेदारी है। इन व्यवस्था को, शिक्षण व्यवस्था, पोषण को भारतीय बनाने में शिक्षण व्यवस्था के सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर शिक्षण व्यवस्था सुधर गई तो ही कल्याण है और इसके लिए हम शिक्षकों को कार्य करने की जरूरत है। तभी देश हमारा परम वैभव को जाएगा, तभी परम वैभव को प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमें व्यवस्थाओं का परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
भारतीय जीवन दृष्टिकोण को समझ कर करना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। हम सभी को यह विचार करने की जरूरत है कि हमारे जो शिक्षा हम जो दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हमारी जो शिक्षा हमारे द्वारा जो दी जा रही है उसका लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य तय होगा फिर हम अपने विषय की विषय वस्तु सिलेबस तय करते हैं। क्या हमने ऐसा किया? क्या लक्ष्य तय करके अपना सिलेबस तय किया? पता नहीं किसने सिलेबस तय किया। हमने विचार ही हम बस पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। सिलेबस खत्म करना है, परीक्षा नहीं सिलेबस से। फिर जैसा सिलेबस होगा और जैसा हम ज्ञान देंगे वैसे ही विद्यार्थी निकलेंगे। बंधुओं, निष्कर्ष के रूप में हम पहुंचते हैं कि हम सभी कुल परंपरा एक ही है। कुल परंपरा का मतलब आप समझ रहे होंगे। हम सभी शिक्षक हम सभी की एक ही कुल के हैं। शिक्षक वो कुल कौन सा है? वो चाणक्य का कुल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कुल है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का कुल है। और हम उन्हीं कुल परंपरा के वाहक हैं जो सभी एक हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। आपने आम का पेड़ देखा होगा। पेड़, जड़, छाल, पत्ता और गुठली सबसे एक ही सुगंध आती है। उसका रंग अलग होता है, रूप अलग होता है, परंतु गंध एक ही है। हम सभी शिक्षकों के अंदर भले ही रूप रंग अलग अलग हैं लेकिन हमारी गंध एक ही है। क्यों? क्योंकि हम इन जो महान विभूतियों का नाम लिए उनकी कुल परंपरा के वाहक हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। हमारे जो कार्य हैं वो चार वर्गों में उसको मैं विभाजित किया हूं। पहला, लोक संपर्क। लोक संपर्क अर्थात हमको समाज में संपर्क स्थापित करना है, बिना भेदभाव के संपर्क स्थापित करना। फिर लोक संग्रह, फिर वहां से एकत्रित करना, संग्रह करना, किसको किस प्रकार की, फिर उसकी वो शिक्षा देने के बाद लोक व्यवस्था में लगाना। चार कार्य हैं हमारे। इसे करने हेतु हमें गुण एवं क्षमता का विकास करना है। और क्षमता का विकास करना है, वो हमारे गुण और क्षमता, उनको भी मैंने चार वर्गों में विभाजित किया है। सबसे विकसित करना है वो समता, समानता, समभाव, एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने क्लास में विद्यार्थी को उसके जात, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि के आधार पे उससे भेदभाव न करें। यह शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। समता का भाव रख के उसके सर्वांगीण विकास करें। दूसरी बात है ममता। ममता मातृत्व भाव के साथ विद्यार्थियों के साथ अपनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और क्षमता, इन सब कार्यों को करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो निमित्त कार्य है उसको करना। और चौथा तथा अंतिम, करुणा की आवश्यकता है। हमें इन जो चारों व्यवस्थाओं को, चार कार्य जो बताए गए थे, उसके लिए करुणा की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। करुणा होगी तभी हम इसको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अपने काम में। हमें ध्येयवादी होना चाहिए। हमारा जो भाव हो वह ध्येय की तरफ, ध्येयवादी हो, व्यक्तिवादी नहीं। रहीमन ने कहा है, रहीमन पीत सराये नीले हाट रंग दून, जो हरदी जरदी तजे तजे सफेदी चून।
हमें व्यवहार चतुर नहीं होना है, व्यवहार कुशल होने की जरूरत है बंधुओं। एक बंधु हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं, जो केला के पात में पात पात में पात, त्यो चतुरन के बात में बात बात में बात। जिस प्रकार केले के पत्ते को निकालते जाइए तो पूरे खाली पत्ता ही निकलेगा, उसमें से जो है जड़ नहीं निकलता। उसी प्रकार चतुरों की बातों में बात बात में बात। हमारा जो भाव हो वो आदर्शवादी, अपने लिए नहीं जीता है। मालवीय जी ने कहा था कि न तो हम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामर्थ नाशनम। भाव को समझ के, इस भाव के साथ हमें अपने कार्य को करना है, शिक्षण का कार्य करना है। मैं एक कहानी बताता हूं। एक बार वैष्णो मित्रों के साथ जा रहा था, रास्ते में एक छोटी सी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, एक और बच्चे को अपने पीठ पे लादी हुई जा रही थी और बिना रुके चली जाए। अभी हम लोग बैठे, वो भी किनारे खड़ी हो गई आराम करने के लिए। तो अचानक हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि अरे भाई उसको उतार दो, भारी है। उस 5-6 साल की बच्ची ने बोला कि भारी नहीं है, यह भाई है। आंखों को खोल दिया, मुक्का के वो अपने भाई को लेके चल दी। ये भाव होना चाहिए विद्यार्थी के प्रति हमारा। अपना अपना कर्तव्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक इस पे एक संत जी की कहानी मुझे याद आती है कि वो नदी में स्नान करने गए तो देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। तो बार बार वो चुल्लू में पानी के साथ साथ उस बिच्छू को बाहर निकाल के, फिर बिच्छू गिर जाए, फिर प्रयास किए, फिर गिर जाए। बार बार डंक मारने के कारण उनको तकलीफ भी हो। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुजी जब ये आपको बार बार डंक मार रही है, बिच्छू है, इसको क्यों आप निकाल रहे हो पानी से? तो गुरुजी ने कहा कि वो डूबते हुए अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है बिच्छू, तो हम स्नान करते हुए अपने स्वभाव से क्यों वंचित रहे? शिक्षकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कर्तव्य बोध का ध्यान होना चाहिए। हमारे हर क्षण व्यवहार परिवर्तन की नहीं जरूरत है। बंधुओं, जयशंकर प्रसाद जी ने एक कविता लिखी, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंच बंधुओं, मेगास्टनीज ने लिखा कि एक बार मैं भारत का भ्रमण जब कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ कोई किसी प्रकार का किसी से कोई विवाद ही नहीं है। और इस विषय के साथ मैं चिंता में पड़ते हुए आगे बढ़ता गया, कौन सा देश है कि जहां कोई विवाद ही नहीं है। आगे बढ़ता गया। जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के पास पहुंचता है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पहले ही उसको 2 लोग आपस में लड़ते हुए मिले। लड़ाई का कारण बड़ा देख के खुश हुआ, गया पूछा कि भाई क्यों लड़ रहे हैं? तो देखा कि एक स्वर्ण कलश में सोने की मुद्राएं भरी हुई है।
एक व्यक्ति कह रहा है कि ये तुम्हारा है, एक कह रहा है कि तुम्हारा है। घटना यूं थी कि एक व्यक्ति ने अपना खेत दूसरे व्यक्ति को, गांव के ही दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। दूसरा व्यक्ति जब उस खेत से हल चला रहा था तो उसने देखा कि स्वर्ण कलश निकला। जब वो स्वर्ण कलश निकला तो उसने कहा कि मैंने तो इस खेत का मूल्य दिया है, स्वर्ण कलश का नहीं दिया है। चलो जिसका खेत है था उसको मैं वापस कराता हूं कि भाई तुम्हारे खेत में से ये मिला। जब लेके गया तो वो कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें बेच दिया, अब इस पे मेरा अधिकार नहीं है, अब इस पे तुम्हारा ही अधिकार है, अब ये तुम्हारा हो गया, मैं ये पाप का धन नहीं लूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब बात इन लोगों को लगा कि क्यों इतनी आगे बढ़ रही है बात, तब उन्होंने जो है पूछा कि भाई क्यों लड़ रहे हो। तो बताया कि गांव के पंचायत को इकट्ठा करके बताया कि भाई खेत मैंने बेच दिया, तो अब इसमें चाहे जो निकले, सोना निकले, चांदी निकले, उस पे अधिकार इनका हुआ, मेरा अधिकार नहीं हुआ। गड़े हुए धन को मैं क्यों अपना मानूं। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने तो केवल खेत का मूल्य दिया हूं, इस स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य नहीं दिया, इसलिए इस पे मेरा अधिकार नहीं बनता है। उस कौन सी शिक्षा थी उस ग्रामीणों के अंदर में, कौन सा संस्कार कहां से मिलता था, उस मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया है। यह बात जो है राजा के पास पहुंचती है। राजा के पास पहुंचने के बाद राजा पूछता है कि भाई ठीक है, जिसका खेत पहले था उसको वापस कर दो। उसने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं नहीं ले सकता इस धन को। फिर दोबारा उसने जो है कहा कि नहीं महाराज, इसको वापस कर देना चाहिए। वो हाथ जोड़ के महाराज की प्रार्थना करता है, तो उससे कहता है कि भाई चलो तुम ही लेके जाओ। उसने भी मना कर दिया। फिर महाराज ने पुरोहित को बुलाया अपने राज्य दरबार में और पूछा कि क्या इसका उपाय किया जाए, इस समस्या से कैसे समाधान किया जाए। ठीक है, लेकिन मैं इस विवाद से निपटारा के लिए यह आदेश देता हूं कि इस कोष को राज दरबार में रखा जाए और जितना जल्दी हो सके इस कोष को समाज के नेक कार्य में लगा दिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि इस धन से का राज कोष से कहीं मिलन न होने पाए, मिक्सअप न होने पाए। इस बात का भी ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है और इस धन को तुरंत राज समाज के कार्य में लगा के खत्म किया जाए जल्द से जल्द। कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी जो इस बात को आगे बढ़ाती थी? ये हमें विचार करने की जरूरत है। बंधुओं, अंत में केवल एक आग्रह करूंगा कि हम सभी धीरे धीरे उस परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है, उसमें बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होगा। शिक्षक की गरिमा पुनः प्रतिस्थापित होगी। भय मुक्त होकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो जब भय मुक्त हम होकर काम करेंगे तो ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें केवल सिलेबस ही नहीं, संस्कार भी पढ़ाना है और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करनी है। यही अगर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में इतनी बातें रखना चाहता था। धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अनिल सिंह जी आपका। मैं डॉक्टर अम्बरीश इस सेशन को होस्ट कर रहा था और निश्चित तौर पे जो आपने आदि अनादिकाल से लेके जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्राचीनतम क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और शिक्षक का क्या समाज को दिशा निर्देश देने का एक दायित्व रहा है और शिक्षक ने उसको हमेशा से आगे बढ़कर लिया है उस दायित्व को और आगे बढ़ाया है, तो आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं चाहूंगा कि इस बीच में कुछ प्रश्न हम लोग ले सकते हैं इस सेशन में, तो कुछ भी एक एक करके कोई 3 प्रश्न हम लोग ले लें तो डॉक्टर अनिल सिंह जी उसका
आपको थोड़ा सा सारगर्भित संक्षिप्त में उसका दिशा निर्देशन कर सकते हैं। कुछ चैट के माध्यम से भी लगातार लोग बने हुए थे, कुछ प्रश्न पूछ रहे थे हम लोगों से। जी, हमारे पास मैं देख रहा हूँ इसको, तो उससे भी जो है जिसको भी कोई प्रश्न पूछना हो, इन व्हाट वे टीचर कैन कंट्रीब्यूट फॉर शिफ्टिंग आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। उसके लिए बताया था मैंने, एक प्रश्न आया है रविंद्रनाथ जी का कि किस तरीके से जो है हम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को जो है में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शिफ्टिंग में। हाँ, तो ये हमने बताया था कि लक्ष्य की बात की थी मैंने कि शिक्षा का जो है, हम जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसके लक्ष्य को पहले समझें कि क्या हमारा लक्ष्य क्या है, शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं विद्यार्थी को। बड़े दुख होता है जब मैं क्लास में, प्रोफेशनल स्टडीज का मैं अध्यापक हूँ, पर्यटन प्रबंध पढ़ाता हूँ, जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई क्यों आप इस विषय को पढ़ रहे हैं, 100% विद्यार्थी यही कहता है कि मुझे नौकरी करनी है। क्यों नौकर बनना चाहते हो भाई? नौकरी किसके यहाँ करनी है? होटल में करनी है, रेस्टोरेंट में करनी है, ट्रेवल एजेंसी में करनी है, एयरलाइन में करनी है, क्यों नौकर बनना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, प्रतिष्ठा इसको है। तो इस प्रतिष्ठा को हमें हटाने की जरूरत है। समाज में जो नौकरी नहीं करता, बिना नौकरी करने वाले जो लोग हैं, उनके कार्यों के महत्व को समझने की जरूरत है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है, और उसके हिसाब से हम विद्यार्थियों को तैयार करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे अभी एक संगठन है इस पे जो काम कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैंने बात किया। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षण मंडल एक संगठन है जिसका 70% इनपुट गवर्नमेंट ने लिया है। तो उस इनपुट का मैं उस संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा के पुनरुत्थान पे काम कर रहा है। उस इनपुट को जो लेने का काम है वो हम सभी के लिए बड़ी लाभप्रद होगा। अगर हम शिक्षा को ठीक तरीके से समझे तो देखेंगे कि शिक्षा जो वर्तमान में दी जा रही है वह लक्ष्यविहीन शिक्षा है। तो लक्ष्य को निर्धारित करके शिक्षा को आगे बढ़ाना, समाजशास्त्र के विषय में लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, और पूरे देश में समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही सिलेबस होगा। केवल रीजनल स्तर पे उसकी जो लोकल इनपुट डालने की जरूरत है वही चेंज किया जा सकता है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जो है उसको एक सिलेबस डिजाइन कर दिया गया है, थोड़ा सा स्कोप दिया गया है कि रीजनल चीजों को कैसे इनपुट किया जा सके। इस तरीके से सभी विषयों में हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, तो करने की, देखने की जरूरत है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी। सर, आपने जैसे बताया कि पूरे देश भर में एक सिलेबस होगा, तो ये बड़ी गड़बड़ वाली चीज नहीं हो जाएगी? पहले अपना परिचय दे दीजिए प्रोफेसर। डॉक्टर मैं उमेश सरोज हूँ, शिक्षक हूँ। मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ, बताएं जी। अगर 2-3 प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। सारा सिलेबस अगर एक जैसा हो गया तो फिर इसके अंदर जो इतने सेक्टर्स हैं, लगभग जितने भी हैं, उनके अंदर फिर गुणवत्ता कैसे आ पाएगी? क्योंकि हर एक को ऑटोनॉमी तो इसमें देनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से अपने सिलेबस को इम्प्लीमेंट कराए और अपने सिलेबस को अच्छे से कर सके। जैसे एक उदाहरण है, बेंगलोर की एक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है जो AICTE से अप्रूवल नहीं लेता है, लेकिन उसकी मान्यता AICTE इंस्टीट्यूशन जितने भी रन कर रहे हैं कोर्सेज उससे ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे हैं ऐसे। हम अपने इम्प्लीमेंट करता है एक इनोवेशन जो एजुकेशन के अंदर चाहिए, उसको ब्रैकेट्स में क्यों बंद करने की कोशिश करते हैं? प्रश्न पहला तो ये हो। अब आप किस विषय के हैं? आप विषय अपना बताएं। मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ।
इंजीनियरिंग से है ना? जी जी जी। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि आपने बात की उसकी क्या कहते हैं नौकर बनने की। पूरा इकोनॉमिकल जो मैकेनिज्म है वो यही है कि आपको सर्व करना है, इंडस्ट्रीज को सर्व कराना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को सर्व करना है, और जो भी चीजें हैं आपको, अगर कहीं किसी शॉप में बड़े से शोरूम में है तो वहां जाके आपको उसका कंपोनेंट बनना, वो भी नौकरी है। तो अगर हर कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा, हर कोई अपने आप में सब कुछ हो जाएगा, तो कैसे एक दूसरे का ये पूरक बनेंगे? हाँ, दोनों बातों का मैं अभी जवाब देता हूँ आपको। कैसे चलेंगी? जी जी, बिल्कुल 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 सरोज जी, उमेश सरोज जी। पहली बात आपने कहा कि एक तो आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, तो इंजीनियरिंग में विद्यार्थी को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए लक्ष्य, मैंने कहा था ना कि हमको लक्ष्य डिसाइड करना है, फिर हमको सिलेबस तय करना है। हमको कैसा इंजीनियर चाहिए, किस क्षेत्र में, किस प्रकार का इंजीनियर चाहिए, पहले अगर हमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया। अभी हम लक्ष्य डिसाइड करके अपना इंजीनियरिंग का सिलेबस बनाए हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हर एक फील्ड निर्धारित है, हर एक का लक्ष्य है अपना अपना। उसी की वजह से आज हम IITs और उसमें बहुत विदेशों तक में हमारे बच्चों की डिमांड है, क्योंकि हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं और वही बच्चे चूज किए जाते हैं। वही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ IIT का। भाई साहब, आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, IIT में आज जो टॉप ब्रेन है IIT का, उसको आपने शिक्षा दिया। IIT में एक एक व्यक्ति पे 40-40 लाख रुपए खर्च हुए। सर, इकोनॉमी में मत जाइए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका अलग है। उस आपने जहां तक लक्ष्य की बात की है कि इंजीनियरिंग फील्ड विदाउट लक्ष्य है, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, लक्ष्य की बात मैं कर रहा हूँ कि लक्ष्य डिसाइड करके सिलेबस बनाया, उसको ज्ञान दिया, तो फिर वो इंजीनियर बनने के बाद IAS क्यों बना? इंजीनियर बनने के बाद वो जो है फिर MBA क्यों किया, और MBA करके वो फिर ऑनलाइन मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन कर रहा है? वो तो अच्छा ना सर, एक उसके पास वर्टिकल लिबर्टी है कि वो जिस भी क्षेत्र में बनना चाहे बन सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक कला सीख ली है तो आप दूसरी कला नहीं सीख सकते। नहीं, मैं इसको मानता हूं कि वो दूसरी कला हम सीख सकते हैं। दूसरी कला में आपको एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, जगदीश चंद्र बसु जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने जी। वो ही वाज द मैन ऑफ फिजिक्स, लेकिन बॉटनी में उन्होंने जो काम किया। हाँ, ऐसे बहुत है सर। लिटरेचर का भी नोबेल प्राइज मिला है, वो इकोनॉमी में उनको नोबेल मिला है, लेकिन ही इज प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी। जी, तो इस तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने काम जो किया वो लक्ष्य को रख के काम किया। दिशा आज जो है ना, जो हमारा युवा समाज है, युवा जो विद्यार्थी है, और इवन बहुत सारे शिक्षक भी अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं कि हमको करना क्या है यही नहीं पता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अगर उस लक्ष्य को अगर ध्यान रख लेना, तो हम मैक्सिमम 90% शिक्षकों से पूछिए तो दे ऑल आर एक्सीडेंटल टीचर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि तो ये सोसाइटी ऐसी बना रखी है, करे क्या, अब सबको ब्रेड एंड बटर चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं यार कुछ नहीं किया तो चलो टीचर बन गया, IAS नहीं बना तो टीचर बन गया जी। अब मैं ऐसे लोगों को जानता जो प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन पाया, वो टीटी कॉलेज में टीचर बन गया जी। इसके लिए फिनलैंड का मॉडल अपनाना पड़ेगा अगर सबको आपके जो आइडियल स्टेज हम लेना चाहते हैं। उसके लिए भाई साहब, उसके लिए उमेश सरोज जी, उसके लिए केवल एक बात को ध्यान रखना होगा, हमको तय करना होगा कि किसको क्या बनना है, और उसके हिसाब से उसको शिक्षा देनी है, उसके हिसाब से उसको तैयार करना है। नेता बनना है, उसको इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है जी, उसको IIT में नहीं पढ़ाने की जरूरत है जी। अगर किसी को रेलवे की इंजीनियरिंग और बढ़िया इंजन बना सकता है, वो व्यक्ति को जो है हम कहे कि चलो तुम जो है अब IPS पुलिस में जो है चोरी और डकैती करने वालों को पकड़ो, वो अपने विधा में अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता था, ज्यादा काम कर सकता था। इसलिए हमको इन चीजों पे लक्ष्य जब तय हो जाएगा तो सिलेबस में गड़बड़ियां नहीं होंगी।
व्यक्ति को उसी, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात मैं कर रहा था उसमें यही है कि अब जी हाँ, मैंने भी उसके अंदर सर कम से कम 8-10 पॉइंट उन्होंने एडवाइस मांगी थी, भेजी थी, पता नहीं कितनी। बहुत सुंदर। तो उसमें एक पॉइंट ये विशेष रूप से दिया गया है कि अब जो शिक्षक बनेगा उसको 10+2 के बाद ही डिसाइड कर लेना है। आने वाले समय में अब शिक्षक जो है एक्सीडेंटल शिक्षक नहीं बनेगा। जी हाँ, ये फिनलैंड मॉडल ही है सर। हाँ, ये फिनलैंड मॉडल नहीं है, ये भारतीय परंपरा यही रही है। भारत में आप जो नालंदा और तक्षशिला को अगर इतिहास को पढ़िए तो आज उन लोगों ने हमारे मॉडल को अपनाया है। हमारे यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया जो होती थी उसको अपनाया है। हाँ सर, एक्चुअल में हो यही रहा है। मेरे कुछ मित्र घाना में है, एक छोटा 30 सेकंड का एक आपको बताता हूँ फैक्ट कि घाना के अंदर कुछ हमारे मित्र हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके पास दुधारू पशु बहुत हैं, लेकिन उनका सारा का सारा दूध अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में जाता है, वहाँ पाउडर बन के वापस आता है। हाँ। उनको पाउडर बनाने की प्रक्रिया का ज्यादा अंदाजा नहीं है, ना इंडस्ट्रीज है। तो वही सर हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन अब हम पुराने इल्यूजन्स से निकल के जो यथार्थ स्थिति है उसको हम करें, क्योंकि बड़ा अच्छा। दूसरा जो आपका प्रश्न रहा सरोज जी, उसका मैं जवाब दे दूं। जैसे आपने बताया नौकर बनाना मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब लोग काम करने से, फैक्ट्री में जाने से, नौकरी करने से मना कर दें, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के कार्य की प्रतिष्ठा। आज मैं आपको बता दूं, मैं स्पेंसर में चले जाइए किसी भी, आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे, इंजीनियरिंग के शिक्षक हैं, मैं स्पेंसर के लोगों से पूछा जो वहां टाई लगा के खड़े रहते हैं कि आप क्या किए हो, तो कहा कि सर मैंने बीटेक किया। फिर क्या किया? MBA किया। अभी क्या कर रहे हो? तो सब्जी स्टॉल पे खड़ा है स्पेंसर में। और उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए महीने। लेकिन बंधु मेरे, अगर आप एक मोहल्ले में, गली में ठेला लगाने वाला है, वो प्रतिदिन 2500 रुपए की ठेले पे सब्जी बेच के आता है, उसको प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन उस टाई लगा के 15,000 की नौकरी करने वाले को प्रतिष्ठा है। क्यों? कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? इस पे विचार करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है आप लोगों को। क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज में ये ट्रेंड हो गया है कि इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट, कोई प्रैक्टिकल देखता है वो एक ही आदमी से मैनेजरियल काम और इंजीनियरिंग का काम दोनों ले लेते हैं। और जहाँ तक प्रतिष्ठा की सवाल है, ये हमें सामाजिक मूल्य है जिसका पतन हो चुका है, जिसको हमने दोबारा से पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन गलत। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा एक संवाद था उमेश जी का और डॉक्टर अनिल सिंह जी का। तौर पे दोबारा से एक रीथिंकिंग, ऐसी नहीं है कि हमको कुछ नया सोचना है, बस वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन रूट्स। हमारे खुद के इतने मजबूत आधार स्तंभ है कि हमको बाकी मॉडलों की शायद आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ज्यादा जरूरत है सर हमारा। लेकिन बहुत बहुत अच्छा रहा। सबका पार्टिसिपेंट्स का हम स्वागत करना चाहेंगे, बहुत ही पेशेंटली सबने सुना सर को। और आप लोग को पूरा एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि अगला जो हमारा सेशन है वो 2:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2-2:30 बजे से उसका समय है, तो आप सब लोग उस बीच में आके अपना लॉगिन कर लेंगे। आपके ID पासवर्ड है। और पूरे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिवार की आजमगढ़ की तरफ से डॉक्टर अनिल सिंह का हम एक बार पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कितने बढ़िया। जी बिल्कुल। आप सभी को बहुत आभार, आपने मौका दिया हमें। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।